Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to have a very wonderful seminar, wonderful class, wonderful session on optional subject selection, right? Optional subject selections, right? So here, this was the oft repeated question of the community members at Success Squad. They were asking many times the Success Squad team about the right optional subject selection. So then the Success Squad team felt the need, the dire need, that we should arrange a specific class, a seminar on optional subjects to address this issue once for all our participants, for all our members, community members. So I hope today's lecture, today's seminar is going to be interactive, highly engaging, and it will enable you to choose the right subjects for yourself for this journey. Okay, so let's begin. This is September 8, 2024, time 10 p.m. We are at Central Success Squad platform, CSSP, and I am Shahzad Khan, right? There are some questions that might come to your mind before choosing a subject for your CSS journey. And this question is, what subject should I choose for CSS or PMS as my optional subjects? From where can I select subjects? Which subjects are scoring? Which subjects are low scoring? And what subjects are high scoring? What are the most opted subjects, chosen subjects? Do I need guidance in this regard or not? What is the significance of the right selection or combination of subjects? Should I choose subjects before the preparation of compulsory subjects, or should I choose subjects after the preparation of compulsory subjects? What is the better and best strategy? And what is the significance of compulsory subjects in choosing the combination of optional subjects? So these are some of the general questions that will come to your mind, that you might come across. You might listen from different CSS or PMS aspirants in this journey. Or these might be your questions. Or these might be the questions in your mind while choosing a subject or a combination of subjects as optional subjects for yourselves. तो सबसे पहले इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा वन बाय वन इन वन लाइनर मोस्टली, राइट? लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि CSS का जो सिलेबस है, इट हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, compulsory subjects and optional subjects. Compulsory subjects are 6, and then you will have to choose out of many subjects, round about 45 subjects. You have to choose 600 marks or 5 or 6 subjects for yourself. So it allows you to have a critical thinking, to have leadership qualities, to select some best combination for yourself. FPSC gives you 6 compulsory subjects from its own side. 6 सब्जेक्ट्स आपको FPSC वाले अपनी तरफ से देते हैं कि भाई आपने ये 6 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं हमारी मर्जी के। वहां पर आपकी मर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन बाकी 6 आपको कहते हैं कि चलो आप ऑफिसर बनने वाले हैं,
हम आपकी चॉइस भी देखना चाहते हैं कि आप अपने लिए क्या पसंद करते हैं, आप में कितनी स्किल्स सलाहियत है कि अपने स्ट्रेंथ्स के मुताबिक, अपने अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक, अपनी स्वॉट एनालिसिस के मुताबिक आप कितना सही चॉइस करते हैं और अपने आप को कामयाब बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि आपको 12 के 12 सब्जेक्ट्स कमीशन से मिल जाते, एफपीएससी से मिल जाते, उनको कोई मसला ना होता, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स देते हैं, बाकी 6 आपको कहते हैं कि आप अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक चूज करें, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक चूज करें, अपने फायदे के मुताबिक, अपने इलाके के मुताबिक, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक चूज करें। इस मार्केट को देखकर चूज करें, टीचर्स के मुताबिक चूज करें, माहौल के मुताबिक चूज करें, अपनी सलाहियतों के मुताबिक चूज करें। हम आपको लीडर मानते हैं, इसलिए हम आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहे। एफपीएससी वाले आपको बता रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से चले, अपने लिए सब्जेक्ट्स भी खुद ही चूज करें। और यही बात जो है सुकरात ने भी कही थी कि इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक रहने का हक हासिल है, उसके चॉइसेस अहम है और उसे चाहिए कि इस लाइफ को, इस जिंदगी को एग्जामिन करे। और इसीलिए सुकरात ने कहा था, Socrates says that the unexamined life is not worth living। कि अगर आप अपनी जिंदगी में अपने एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, अपनी चॉइसेस नहीं रख सकते, अपने लिए कुछ चीज को चूज नहीं कर सकते, राइट चॉइसेस आप नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते, डिस्कवर नहीं कर सकते, जी नहीं सकते जिंदगी, सो इट इज नॉट वर्थ लिविंग अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी बेकार है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, इट इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर दिस जर्नी। इस जर्नी को कामयाब बनाने के लिए, अपनी वक्त को जाया होने से बचाने के लिए सही सिलेक्शन का होना लाजमी है। वरना मैंने ऐसे सीएसएस एस्पिरेंट्स देखे हैं कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सब्जेक्ट सिलेक्शन रखते हैं, फिर वो फेल करके दूसरे में अलग सब्जेक्ट सिलेक्शन रखते हैं, और फिर वो भी फेल करके तीसरे में अलग सब्जेक्ट सिलेक्शन रखते हैं। मतलब ये है कि ये तीनों अटेम्प्ट्स जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते कि मेरे लिए सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिसके जरिए मैं सीएसएस पास कर सकूं। बड़ी हैरानगी होती है। यही लोग ब्यूरोक्रेट बनेंगे, यही लोग ऑफिसर बनेंगे जिनके पास ये क्लैरिटी ही नहीं है अपने स्ट्रेंथ्स की, अपने इंटरेस्ट की, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की, अपने टीचर्स की, अपने माहौल की, अपने सीएसएस सिलेबस की, अपने सब्जेक्ट्स की, स्कोरिंग ट्रेंड्स की, लो स्कोरिंग ट्रेंड्स की, हाई स्कोरिंग ट्रेंड्स की, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। अगर आप लोगों के पास इतनी ही जो है इल्म ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, एंड यू डोंट हैव दैट choice to select a proper subject for yourself, and you want to become an officer, and you want to become a bureaucrat, and you want to become and to sit on executive post, to decide the future and to make policies for a district at least। कि आप कल डीसी बनकर एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप पॉलिसीज बनाएंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आप वजीर आजम और वजीर आला और मुख्तलिफ वज़रा को जो है सजेशंस देंगे, आप मुल्क की इकानमी बेहतर करेंगे, टैक्स का निज़ाम ठीक करेंगे, रेलवे का निज़ाम ठीक करेंगे। और ये तब जब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन तो आती हो ना। जिनको सब्जेक्ट सिलेक्शन आती ही नहीं है वो इन सारी सोचों से दूर रहे पे। तो कहने का मकसद ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, essential part of this journey। जितना बेहतर कॉम्बिनेशन आप शुरू में अपने लिए बनाएंगे, उतना ही जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, चाहे सीएसएस के हैं, पीएमएस के हैं, वो क्लैरिटी के साथ दे सकेंगे। यही बात आपको सुकरात समझा रहा है कि भाई आपने
जिंदगी बिना सोच के नहीं गुजारनी। यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू एक्सप्लोर योर लाइफ, you have to know your strengths, you have to know your weaknesses, you have to know your opportunities, you have to know your threats। इसको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर लिखा भी है, इसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी मैं आंसर करता हूं, व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज फॉर CSS और PMS? कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैं चूज करूं CSS PMS के लिए? तो आप वो सब्जेक्ट्स चूज करें जिसमें आपको क्लैरिटी हो, जिस पर आप क्लियर हो। सपोज आपने सेलेक्ट किया एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो क्या आपको मैथमेटिक्स का पता है? व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स है क्या? इसमें क्या है, क्या होता है? आपकी मास्टर्स की डिग्री है इसमें, आपका कोई बैकग्राउंड है, आपने इसमें BS किया हुआ है। सपोज आप सेलेक्ट करते हैं पश्तो, तो आपका पश्तो का बैकग्राउंड है। सपोज आप चूज करते हैं US हिस्ट्री, तो US हिस्ट्री आपने क्यों चूज की? ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स जो है आपने सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो। ये नहीं कह रहा हूं कि आपने उसमें खामखा लाजमी कंपल्सरी जो है, जिसको हम कहते हैं कि मैंडेटरी, बिल्कुल आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर जरूर आपका इसमें 100% जो है इल्म हो आपको, नहीं, वो लाजमी नहीं है। एटलीस्ट यू मस्ट नो that you have studied it somewhere in your school, somewhere in your college, somewhere in your university, somewhere in a semester or two। अगर इतना भी आपने पढ़ा है सो आपको फिर उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी होती है। फ्रॉम वेयर कैन आई स्टार्ट और फ्रॉम वेयर कैन आई सेलेक्ट सब्जेक्ट्स? तो आपके लिए इसके लिए जो है सिलेबस दिया गया है FPSC की तरफ से, आपने वहां से चूज करने हैं। विच सब्जेक्ट्स आर हाई स्कोरिंग? कौन से सब्जेक्ट्स हाई स्कोरिंग हैं? तो इसके लिए तो फिर आपने एग्जामिनर्स का रिपोर्ट पढ़ना होगा। एग्जामिनर का रिपोर्ट किधर होता है? एग्जामिनर का रिपोर्ट होता है हर साल के एंड में, जो रिजल्ट आता है उससे पता चलता है, एक बात। दूसरी बात, एग्जामिनर्स रिपोर्ट FPSC पर 2019 तक अवेलेबल है। आप जाएं 2017, 18, 19 का एग्जामिनर रिपोर्ट उठा लें और देख लें कि कितने जो है सब्जेक्ट्स हिट होते हैं, या उसमें स्टूडेंट्स कम मार्क्स लेते हैं, किसमें ज्यादा मार्क्स लेते हैं, पासिंग रेशो क्या क्या है, और वो रिपोर्ट पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा। विच सब्जेक्ट्स आर लो स्कोरिंग? आप पिछले साल का उठा लें, उससे पहले साल को उठा ले, 2020 से 2024 तक जितने भी रिजल्ट्स हैं उसको उठा ले, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, व्हाट आर द मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट्स? कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं? तो वो सब्जेक्ट ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं जो ज्यादा टेक्निकल ना हो, जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। वो लोग ले सकते हैं जिनका बैकग्राउंड हो, जिन्होंने इसमें कोई मास्टर्स किया हुआ हो, जैसे कि लॉ। ठीक है, तो ये वो लोग लोगे जिसने इसमें मास्टर्स किया हुआ हो। बाकी लोग प्रेफर करते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस लूं, मैं IR लूं। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट्स लूं जैसे कि जेंडर स्टडीज। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं। डू आई नीड गाइडेंस इन दिस रिगार्ड? ऑफ कोर्स यू नीड गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस यू आर जस्ट थ्रोइंग एयर्स हियर एंड देयर इन द एयर। ठीक है, ये बस हवा में तीर फेंकने के बराबर होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स? हाईली हाईली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसके बगैर CSS क्लियर करना जो है मुश्किल हो जाता है, और अगर आपके पास राइट सिलेक्शन आ जाता है तो आपके CSS क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो इस वजह से ये हाईली सिग्निफिकेंट है, और आपका टाइम भी ज़ाया होने से बच जाता है। अगर आप हर महीने अपने सब्जेक्ट्स चेंज करते रहें और हर महीने आप उसके जो है दोबारा से हर सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करते रहें, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। Should I choose subjects before the preparation of compulsory subjects or not? No.
आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तैयारी से पहले अगर चॉइस चूज करते हैं कर लें, लेकिन उसको फाइनल ना करें। सबसे पहले जरूरी है दैट यू शुड प्रिपेयर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की रेलेवेंस के मुताबिक ही आपने चूज करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको एसए में हेल्प करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है जीएसए में हेल्प करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको इस्लामिक स्टडीज में हेल्प करेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करेगा, अगर आपको ये पता नहीं है तो याद रखे आपकी चॉइस जो है सही नहीं है। What is the significance of compulsory subject in choosing the combination of optional subjects? Highly significant. ठीक है, ये भी इंतहाई अहम है कि आपको पता हो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है इंतहाई लाजमी है। सबसे पहले आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और उसके बाद जब आपके पास पूरा का पूरा इल्म आ जाए तब आपको पता लगेगा कि आपने पॉलिटिकल साइंस लेना है या आईआर लेना है, या आपने मैथमेटिक्स लेना है या कंप्यूटर साइंस लेना है, या आपने फिजिक्स बायो केमिस्ट्री लेनी है, या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, आपने अकाउंटिंग्स लेनी है, आपने क्या लेना है। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को ये 600 मार्क्स जो है वो आपको किधर किधर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट किधर किधर आपको जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। बाकी आप लोगों की क्वेश्चन आंसर सेशन आखिर में रखूंगा, जो भी क्वेश्चन करोगे फिर आखिर में जवाब दूंगा। थोड़ा सा सिलेबस को समझते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत ही बिगिनर इंतहाई जिनको ये पता भी नहीं है कि सिलेबस क्या है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं कि हमारे पास सिलेबस है एंड द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स 600 है, एंड वन पार्ट इज फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और उसमें से भी आपने 5 या 6 सब्जेक्ट्स 600 नंबरों के सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से है? दिस इज द क्वेश्चन। वी हैव गॉट इंग्लिश एसे one paper, second paper English Pressy and Composition, third paper Pakistan Affairs, the fourth one is Current Affairs, the fifth one is General Science and Ability, and the sixth paper is Islamic Studies। ठीक है, अब ये 6 आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। एक बात, दूसरी बात यह कि ये हर एक पेपर 100 नंबरों का होता है और ये 600 मार्क्स बन जाते हैं। When we come to the optional part or optional subjects part, इसमें हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स हैं। 7 ग्रुप्स में से आपके पास जो है 45 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हीं में से आपने अपने लिए 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स, अगर उसमें एक सब्जेक्ट 200 नंबरों का हो तो फिर जो है आपने 600 नंबरों का एक ग्रुप कॉम्बिनेशन बनाना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं। अच्छा, अब देख लें, ये हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ये एफपीएससी वालों की तरफ से ग्रुप दिए गए हैं। ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में आप लोगों को लिख कर देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा करके, अच्छा, लिख कर देते हैं कि आपने क्या करना है। आपने करना है चूज और सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स। यहां से एक सब्जेक्ट उठाना है और वो एक सब्जेक्ट जो है 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। इसमें ज्यादातर लोग या आईआर लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस।
लेकिन जो लोग इकोनॉमिक्स में उनकी अपनी डिग्री होती है, सीएस में डिग्री होती है या अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में उसकी अपनी कोई डिग्री होती है, एमफिल की, एमएस की या जो है बीएस की, तो वो इन सब्जेक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है, जो आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे में हेल्प करेगा, वो आपके दो पेपर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर। ठीक है, ये बाकी सब्जेक्ट्स हाईली टेक्निकल भी हैं और ये आम या हर कोई बंदा नहीं ले सकता। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस और आईआर ये जनरल किस्म के हैं। ये आपका ताल्लुक इंजीनियरिंग से हो, आपका ताल्लुक किसी लॉ के स्टूडेंट्स हो, आपका ताल्लुक जो है मेडिकल से हो, जिस भी फील्ड से हो, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप आईआर ले सकते हैं, आप इसको एक अच्छे टीचर के साथ जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ग्रुप देख लें। दूसरे ग्रुप में आपने क्या करना है, सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स और टू सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स। इसमें से आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 200-200 मार्क्स हैं, इसमें से एक ले सकते हैं। और फिर हमारे पास है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी 100 मार्क्स से हैं, प्योर मैथमेटिक्स, तो इन दोनों को आप ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स, ये 100 मार्क्स है, जियोलॉजी ये भी। अगर आपने इस ग्रुप से लेना है तो फिर आपने 200 नंबरों के लिए इस ग्रुप में जाना होगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री 200-200 मार्क्स और बाकियों के 100-100 मार्क्स। लेकिन अगर 100-100 की तरफ जाते हैं तो फिर आपने यहाँ से 2 सब्जेक्ट्स उठाने होंगे। और याद रखें, ये वो लोग जिनको फर्स्ट टाइम है अटेम्प्ट का, उनके लिए बता रहा हूँ। जिधर आपको 200 नंबर दिखाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पेपर 1 होगा, फिर इसके पेपर 2 होंगे। फिजिक्स है तो फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस 1, पॉलिटिकल साइंस 2। पेपर आपके 12 के 12 होंगे। सब्जेक्ट उसका 1 हो सकता है। ठीक है, बाकी हमारे पास है कि सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, ये ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाना होगा और 100 मार्क्स का उठाना होगा। इसी तरह ग्रुप 4 से जो है सेलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, तो यहां से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सब्जेक्ट 100 मार्क्स का उठाना है। और इसी तरह ग्रुप 5 से भी 100 मार्क्स का, और ग्रुप 6 से भी 100 मार्क्स का, और ग्रुप 7 से भी 100 मार्क्स का आपने उठाना है। ठीक है, ये अपने अपने किस तरह उठाना है, कौन से एनालिसिस के जरिए उठाना है, वो मैं आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करके उसी से बताता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक टीजर दे दिया, एक ओवरव्यू दे दिया, या आप इसको कह सकते हैं कि एक एक शो कर दिया डॉक्यूमेंट कि ये आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में आपने सेलेक्ट किस नज़रिए के मुताबिक, किस सोच के मुताबिक, किस माइंड के साथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो वेरी बेसिक हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इन्हीं को जहन में रखते हुए आप अपने लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये है, अभी बता भी दिया, इंटरकनेक्टेडनेस विथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स। आप वो सब्जेक्ट्स उठाकर देख ले जिसका कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ कोई रिलेशन हो। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस आईआर, तो ये जेंडर स्टडीज, इसी तरह यूएस हिस्ट्री, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, और साथ में आपकी जो इंटरव्यू है, साथ में आपका जो ऐसे है, वहां पर आपको ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस क्या है, एस से मुराद स्ट्रेंथ है, डब्ल्यू से मुराद वीकनेसेस है, ओ से मुराद अपॉर्चुनिटीज हैं, और टी से मुराद थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो आप अपने एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए जरूर देखें कि वहां पर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वहां पर आपकी वीकनेसेस क्या है, वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, वहां पर आपकी के लिए थ्रेट्स क्या है। सपोज आपने एक सब्जेक्ट ले लिया उर्दू लिटरेचर, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश लिटरेचर, जो कि हाईली डिस्करेज होते हैं इस मार्केट में या बाय द मेंटोर्स एंड टीचर्स। लेकिन सपोज आपने ले लिया, ठीक है,
उर्दू लिटरेचर ले लिया, इंग्लिश लिटरेचर, तो आप देख ले इसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपकी कोई जो है डिग्री इसमें है, अगर है तो ये तो आपका स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस क्या है, अगर आपकी डिग्री इसमें नहीं है तो ये तो आपकी वीकनेस हो गई। या अगर आपकी डिग्री है लेकिन वो इस लेवल की नहीं है जिसमें आप किसी के साथ compete कर सके, आपने बस ऐसे ही मास्टर्स की डिग्री इसमें कर ली है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लैरिटी CSS लेवल, PMS लेवल का इसमें नहीं है। यूनिवर्सिटी में सबको डिग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम अलग होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम से। अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज मिसाल के तौर पर आपको टीचर अवेलेबल हैं, आपको नोट्स अवेलेबल हैं, आपको जो है कोई अकेडमीज अवेलेबल है इस सब्जेक्ट के ऊपर, आपके घर में कोई है जो आपको ये पढ़ाए। इसी तरह आपके पास अपॉर्चुनिटीज में आपके पास पैसे भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है थ्रेट्स क्या है, इसका कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं है, ये कोई ऑफर ही नहीं करता, ये जो है इसका कोई गाइडलाइंस ही आपको एफपीएससी वालों की तरफ से क्लियर मिल नहीं रहा, तो ये सारे फिर थ्रेट्स हैं। तो हर सब्जेक्ट का आपने स्वॉट एनालिसिस करना है। इसी तरह आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट उठाने हैं, और इंटरेस्ट सिर्फ पसंद को नहीं कहते हैं कि मुझे लिटरेचर पसंद है, उसमें एप्टीट्यूड भी होना चाहिए कि आप उसमें काबिल है भी कि नहीं। अब मैथ्स मुझे पसंद है, मिसाल के तौर पर फिजिक्स बायो मुझे पसंद है, उसमें इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड है उसमें या नहीं है, मुझे ये भी देखना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों को देखना है। और जब भी आप सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट प्रेफर करें जिसके बारे में आप कुछ ना कुछ जानते हो, मिसाल के तौर पर आपने उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उसको हाईली डिस्करेज किया जाता है, आप उसको ऑप्ट ना करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉ, प्योर साइंसेस सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, तो इन सब्जेक्ट्स को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स फिर आप प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे अगर आपकी उसमें मास्टर्स की डिग्री ना हो। लुक एट द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटोर्स आर टीचर्स फॉर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट्स आपने लेना है तो देख ले कि इसके लिए आपके पास गाइडेंस फिर मौजूद हैं भी कि नहीं, टीचर्स मौजूद हैं, मेंटोर्स मौजूद हैं भी कि नहीं। यू कैन कंसिडर स्कोरिंग ट्रेंड्स, लेकिन स्कोरिंग ट्रेंड्स याद रखें, इस पर रिलाई नहीं करना, ठीक है, कि ये इस सब्जेक्ट में हर साल नंबर आते हैं तो बस इस साल भी आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में हर साल नंबर नहीं आते तो इस दफा भी नहीं आएंगे। सो ट्रेंड्स शुड नॉट इन्फ्लुएंस योर सिलेक्शन। लिटरेचर की बात करूं तो इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर इसको हाईली डिस्करेज किया जाता है, तो अगर अवॉइड कर सकते हो अवॉइड इट, बाकी चॉइस आपकी अपनी है। सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस टीचर एंड मेंटोर्स, और इसके लिए मैं ऑफर करता हूं सक्सेस स्क्वाड की टीम के साथ आप जो है अपनी चॉइस और सिलेक्शन शेयर कर सकते हैं। हम इसके लिए डिस्कशन ग्रुप जो है ओपन रखेंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे अपना ऑप्शनल जो है सिलेक्शन लगाकर डिटेल के साथ, स्वोट एनालिसिस के साथ, इंटरेस्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट के बारे में लिखकर हमें कॉम्बिनेशन बताएं कि मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए सेलेक्ट किया, ये इसलिए सेलेक्ट किया, ये इसलिए सेलेक्ट किया, ये कॉम्बिनेशन मेरे मुताबिक बेस्ट है, आप लोग इसमें हमें गाइड करें, फिर हम आप लोगों को गाइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर और मेंटोर से हेल्प जरूर लिया करें। फर्स्ट, कंप्लीट द प्रिपरेशन ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एज आई सेड अर्लियर, ठीक है। और शेयर यूर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स विद सक्सेस स्क्वाड टीम, ठीक, आपने ये लाजमी करना है हमारे साथ, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो कॉम्बिनेशन आप जो कॉम्बो आप लोग बनाएंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और उसके मुताबिक हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, और आप फिर बेहतर से बेहतरीन सिलेक्शन कर पाओगे और एक राइट डिसीजन पर पहुंच पाओगे। So the right subject choice can make all the difference. As I said earlier, तो चूज किस तरह करना है, चूज वाइजली, अकल इस्तेमाल करके, अकलमंदी, जज्बात, इंटरेस्ट और इन सारी चीजों के साथ होश में रहकर सॉलिमली सेलेक्ट करें, सीरियसली सेलेक्ट करें, ठीक है। लोगों की पसंद और नापसंद को छोड़े, फोकस ऑन यूर ओन, बिकॉज यू विल थैंक यूर सेल्फ फॉर इट फ्यूचर में, ठीक है। सो एक चीज बताता हूं, प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, नॉट रिलाइंग सोली ऑन ट्रेंड्स एज आई सेड अर्लियर। और अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरली इंडिकेटिव ऑफ द
फ्यूचर रिजल्ट। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट में ये हुआ, पिछले साल ये हुआ, पिछले साल वो हुआ, 10 साल पहले ये हुआ, उसको भी छोड़ दें। ठीक है, जो तरीकेकार, जो गाइडलाइंस मैंने बताए हैं आज के लेक्चर में, उसी को फॉलो करके अटेंटिवली इस लेक्चर को दोबारा सुन के इसको समराइज करके जो है लिखे अपने लिए, और फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ चले जाएं, एंड यू विल हैव द बेस्ट सब्जेक्ट selection for yourself, and you will thank yourself for this selection in future. So from me it's enough. अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं और आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं।